Good evening, dear students. Our current topic is compound pendulum or physical pendulum in the form of elliptical lamina. Dear students, any body which is capable of oscillating about any point or axis is a physical or compound pendulum. So there are many cases and many types of body which are termed as physical pendulum or compound pendulum, but specifically in this case we are going to consider here an elliptical lamina. So you know very well about ellipse. So we have an elliptical lamina. Lamina means we are not having ellipse in the form of a wire or some sort of wire kind of thing. Here elliptical lamina means we have roughly we can speak a two-dimensional elliptical shape type of body. So dear student, consider one such elliptical body. जैसे आपकी जो कॉपी होती है उसके ऊपर एक हार्ड कवर होता है, उसको अगर आप एक इलिप्स की फॉर्म में काट लेंगे तो हम उसको इलिप्टिकल लैमिना कह सकते हैं। एक पीस ऑफ पेपर को अगर आप इलिप्स की फॉर्म में काट लेंगे तो हम उसे एक इलिप्टिकल लैमिना कह सकते हैं। सो दिस इज एन इलिप्टिकल लैमिना and some variables associated with are A and B are, as you know, semi major and semi minor axis. A and B you know very well. And yes, student, let's m is its mass, and that mass is distributed uniformly throughout this elliptical lamina. And we made a hole in this lamina and suspended this lamina with the help of a rigid support at this point. जैसे हमने मान लीजिए कील गाड़ के दीवार में और उस कील के अंदर इसको टांग दिया है और ये उसमें ऑसिलेट कर सकते हैं। इस पॉइंट के अबाउट ये लैमिना इट्स लाइक दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, कि इस प्रकार से ऑसिलेट कर सकता है। सो इट्स नेचुरल और यू कैन से इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ दिस लैमिना इज दिस वन। और प्यारे बच्चों, यहाँ एक पॉइंट है इसका जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस लैमिना. दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, so it's denoted by S, and this point is denoted by G, which is center of gravity for this lamina. Now if we consider this situation, then this lamina will stay here permanently because this position is its natural or equilibrium position. A force mg is acting at point G vertically downward due to earth. Now we slightly or gently apply a force on this, and dear student, we displace this body through an angle, a very small angle theta. Suppose exactly ऐसा ही बनना तो मुश्किल है नहीं, बट आई विल ट्राई. ये मान लीजिए हमने इसको थोड़ा सा इसकी जो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी वहाँ से हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया है. ठीक बन गया. और जितने एंगल से हमने इसको डिस्प्लेस किया है वो जो एंगल है पहले बच्चों वो वेरी स्मॉल, उसको हमने कहा थीटा. तो ये इसकी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, इसको हम थीटा इक्वल्स 0 कह सकते हैं. और ये हमारी अब ये इसकी नई पोजीशन है. एंड दिस एंगल इज थीटा एंड दिस थीटा इज वेरी स्मॉल. वी आर अज्यूमिंग दैट दिस थीटा इज स्मॉल. एंड डियर स्टूडेंट, this was the center of gravity G. Now again the force mg is acting vertically downward towards the center of earth.
this is mg, and this angle is also, dear student, theta. If this angle is theta, then this is also theta. It is clearly obvious from the diagram. प्यारे बच्चों, इस mg को मैं इस एक्सिस के साथ और इसके परपेंडिकुलर के साथ मैं इसको थोड़ा रिजोल्व कर देता हूं. This purple line is mg cos theta, and at 90 degree this component is mg sin theta. mg sin theta. प्यारे बच्चों, अब आप देखेंगे कि mg cos theta is acting along a line passing through the axis. So the torque due to this mg cos theta is 0, because torque depends on the angle between the line of action of force with the axis of rotation. So this mg cos theta is acting along the line which is making angle 0 degree with the axis of rotation. But mg sin theta, you can see this component of force mg sin theta is acting at a right angle to the axis of rotation. It's not axis of rotation, I'm sorry, it's perpendicular to the position vector of this point G, and this is parallel to the position vector of this point G from the axis of rotation or point of rotation. प्यारे बच्चों, मैं जो ये जो लेंथ है इसको मैं L मानूंगा, and this is length of the pendulum. डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने कहा कि अब इस पर एक टॉर्क लगेगा, mg sin थीटा के कारण एक टॉर्क लगेगा, एंड टॉर्क का फॉर्मूला आप सब पहले से जानते हैं कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क दैट इज फोर्स इज mg sin थीटा and the perpendicular distance from the axis rotation to the application of force. So this is the perpendicular distance, and this distance is L. So dear student, say L mg sin theta is the torque acting on this elliptical lamina. प्यारे बच्चों, ये जो टॉर्क है टाउ, इसको हम कहेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क. रीस्टोरिंग टॉर्क हम इसलिए कहेंगे क्योंकि ये इस इलेप्टिकल लेमिना को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा. रिस्टोर यानी ये जैसा था ये उसी प्रकार से इसको करने की कोशिश करेगा, यानी इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा. यानी जहाँ ये थीटा इक्वल टू 0 जो इसकी लोकेशन थी ये वाली, ये इसको यहाँ लाने की कोशिश करेगा, इसलिए हम इसको रिस्टोरिंग टॉर्क भी कहते हैं. एंड डियर स्टूडेंट, थीटा इज स्मॉल, जैसा मैंने बोला, तो इफ थीटा इज स्मॉल देन आप इसको लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू mgl theta, because if theta is small then sin theta is nearly equal to theta. इसके साथ ही यहाँ पे एक माइनस साइन और मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. इसको आप दो तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं. पहला ये कि रिस्टोरिंग टॉर्क है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा वो हमेशा क्या करते हैं बच्चों, आप जो इस पर टॉर्क लगा रहे हैं उसके हमेशा अगेंस्ट लगेगा. जैसे मान लीजिए आपने इसको टॉर्क लगाया, क्योंकि आप इसको थोड़ा सा साइड में करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यू आर एक्सर्टिंग ए टॉर्क ऑन दिस इलेप्टिकल लेमिना. सो एक तो ये आपके टॉर्क, आप जो टॉर्क अप्लाई करें उसके ऑपोजिट है, यानी कि रिस्टोरिंग टॉर्क. इट्स लाइक जैसे स्प्रिंग के केस में आपने देखा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. तो माइनस क्यों आता है, क्योंकि स्प्रिंग का जो फोर्स इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू एक्स. तो सेकेंड जो पॉइंट ऑफ जस्टिफिकेशन है, आप उसको ये भी कह सकते हैं कि जो टॉर्क है और थीटा है, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है. अगर इस सिचुएशन में देखें तो जो थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसकी डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड एंड डायरेक्टिंग आउटवर्ड. ये थीटा की डायरेक्शन है. और टॉर्क की डायरेक्शन अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो वो बोर्ड के अंदर की तरफ आएगी 90 डिग्री टू द बोर्ड डायरेक्टिंग इनसाइड, एंड द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ थीटा एंड टॉर्क इज 180. दैट्स व्हाई वी कैन से द नेगेटिव साइन कम्स हियर. सो स्टूडेंट, हम इसको आगे लिख सकते हैं, टॉर्क इज माइनस के, दिस इज लोअर केस के, ध्यान रहे
थीटा जहां पर k है mg/l। नाउ द टाइम पीरियड फॉर एनी फिजिकल पेंडुलम इज t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ इनर्शिया फैक्टर एंड दिस k। ये किसी भी फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। प्यारे बच्चों, इलेप्टिकल लेमिना के केस में ये 2 पाई, अभी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमें लेना है s के अबाउट। ये जो लेंथ है ये l है। प्यारे बच्चों, अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे is, यानी कि इलेप्टिकल लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट s। यहाँ पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगानी पड़ेगी, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, और ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये दोनों एक्सिस आप देख रहे हैं पैरेलल है, तो बाय अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम दिस is इज, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहता है कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास और इन बीच के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर ml स्क्वायर बाई k का वैल्यू हमारे पास है mg/l। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इलेप्टिकल लेमिना अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्यारे बच्चों, वो होता है m/4 a² प्लस b², और ये हमारे पास आ गया ml² अपॉन mg/l। मैं कहीं बड़ा m लिख रहा हूँ, कहीं छोटा m। प्यारे बच्चों, हम इसको यूनिफॉर्म कर लेते हैं, इट्स अपर केस m। अब यहाँ से बच्चों m यहाँ पर कॉमन आके कैंसिल हो गया ऊपर से और नीचे से, और इसको थोड़ा सा मैं ठीक करके लिख देता हूँ। सिंप्लीफाई करेंगे तो m कॉमन आ गया, ये बन गया हमारा a² प्लस b² प्लस 4l² बाई g/l। ये हमारे पास आ गया, यहाँ 4 और आएगा। मैंने 4 एलसीएम भी ले लिया, तो यहाँ पे 4 आएगा, और ये जो एलसीएम वाला 4 है वो नीचे आ जाएगा। m न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से गायब हो चुका है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम एक और बात अज्यूम करेंगे, और वो अजम्पशन ये है, इफ s इज एट फोकस, यानी जो पॉइंट s है, जो हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, अगर वो इस इलिप्स के फोकस में से है तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, जो L होगा हमारा वो होगा A इंटू ई। A इज सेमी मेजर एक्सिस और E इज एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। अब इलिप्स की कितना एसेंट्रिसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि L कितना होगा। L मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, और फोकस कितना दूर होगा। अब ये जो L की वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 4 a² e² अपॉन 4 g/a/e। नाउ डियर स्टूडेंट, अब इसी के अंदर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4ae से डिवाइड करेंगे, तो t आपके पास आ गया 2 पाई रूट ऑफ a² प्लस b² बाई 4ae प्लस 4 से 4 कैंसिल, ae से एक ae कैंसिल अपॉन g। ये हमारे पास आ गया। अब हम इस ae को वापस l पुट करेंगे, तो t आपके पास बन जाएगा 2 पाई रूट ऑफ a² प्लस b² बाई 4l प्लस l अपॉन g। देखिए, हमने वापस इसमें सब्स्टिट्यूट क्यों किया, तो इसके पीछे जो हमारा लॉजिक है वो ये है प्यारे बच्चों, कि
हमने एक अजम्पशन लिया था कि जो पॉइंट एस है वो हमारा फोकस पे है, तो ये जो फॉर्मूला है ये फोकस के लिए है, लेकिन जब हम वापस इसी फॉर्मूले पे आ गए तो फिर ये हमारा फॉर्मूला किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए भी बन गया, यानी फिर से एस के लिए हमारा पॉइंट बन गया है। बाकी इसमें हमारा जो मोस्टली जो डेरिवेशन है वो फोकस के लिए ही है। नाउ हम यहाँ एक और छोटा सा डाइग्रेशन करेंगे। इसमें पहले बच्चों एक कंसेप्ट होता है और वो होता है रेडियस ऑफ जायरेशन। सो रेडियस ऑफ जायरेशन अगर आपको किसी भी बॉडी के लिए निकालना है किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो आपने सिंपल से लिखना क्या होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन का सिंपल सा बच्चों तरीका क्या है कि आप जो रेडियस ऑफ जायरेशन है उसका स्क्वायर इनटू मास एम के स्क्वायर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दीजिए। अच्छा ध्यान रहे बच्चों, ये के जो है ये बड़े वाला के है, यहाँ जो मैंने के यूज किया था वो छोटे वाला के यूज किया था, तो ये रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए है और ये के हमारा इस एक प्रकार से सेपरिंग फैक्टर या टोर्सनल कांस्टेंट, आई थिंक इसका अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये उसके लिए है। सो एम के स्क्वायर इज एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4। तो मैंने क्या किया, मैंने रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हमारा था उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था m/4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बराबर हमने इसको कर दिया। m से m कैंसिल हो गया और ये जो टर्म हमारे पास आई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 वो आ गया रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर। तो इस टर्म को आप इस टर्म की जगह क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर, और ये टर्म आप ध्यान से देखिए बच्चों ये रही, क्या इस एल को छोड़ दीजिए, तो ये बन गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 एंड दिस कैन बी रिटन एज के। सो इट इज 2 पाई रूट ऑफ के स्क्वायर बाय एल प्लस एल बाई जी। ये हमारा टाइम पीरियड का हमारे पास एक प्रकार से जनरल फॉर्मूला हमारा ये बन गया पॉइंट एस के लिए एंड दिस वाज फॉर फोकस। और ये आप फोकस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों पे अप्लाई हो सकता है। ये हमारा एक प्रकार से सीधी सी बात कहे तो जो टाइम पीरियड है हमारे कंपाउंड पेंडुलम का इन द फॉर्म ऑफ एलिप्टिकल लैमिना ये आ गया है। लेकिन बात अभी आधी ही खत्म हुई है, कभी आप ये सोचो टॉपिक खत्म हो गया। ये हमारी मतलब ऑब्जेक्टिव हमारा यही रहता है कि हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाए। एक बार बच्चों लेट मी चेक द बैटरी, अभी ठीक है। सो अब इसके आगे क्या करना है देखिए, अब इसमें एक नया कंसेप्ट आता है बच्चों और वो कंसेप्ट आता है इक्विवेलेंट लेंथ का। ये जो के स्क्वायर बाई एल है ये वाला, अगर हम इस पॉइंट जी से और ये डिस्टेंस के स्क्वायर बाई एल, ये बच्चों ये डिस्टेंस का ही डायमेंशन है, ये डिस्टेंस ही है। तो इसी लाइन में कोलिनियर विद एस एंड जी अगर हम एक पॉइंट ढूंढते हैं के स्क्वायर बाई एल, वो मान लो यहां आ गया, ये एक पॉइंट है जो यहां से के स्क्वायर बाई एल डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट को कहते हैं, मैंने उसको कहा ओ, और ओ है हमारा पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। थोड़ा सा समझना बच्चों, पहले हमें ऐसा लग रहा था कि ऑसिलेट कर रहा है तो जी हमारा एक वो पॉइंट है जिसको हम एक प्रकार से काइंड ऑफ सेंटर मान सकते हैं कि भाई ये ऐसे मूव कर रहा है, बट वो नहीं है, ये एक और पॉइंट है ओ, जिसको आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि दिस पॉइंट इज ऑसिलेटिंग। वैसे तो देखो बच्चे पूरा ऑसिलेट करता है, लेकिन इस ओ के बारे में खास बात है। खास बात यह है कि जो एस से ओ का जो डिस्टेंस है जो कि है एल प्लस के स्क्वायर बाई एल, जो यहां लिखा है, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ फिजिकल पेंडुलम। इक्विवेलेंट लेंथ क्या है वो सुनो। प्यारे बच्चों, हमारे पास ये इलिप्टिकल लैमिना है मान लो, एंड नाउ इट इज ऑसिलेटिंग, यू कैन सी दैट दिस इज ऑसिलेटिंग, ठीक है।
इसका टाइम पीरियड हमने नोट कर लिया, से इसका टाइम पीरियड है 3 सेकेंड मान लो थोड़ी देर के लिए, और मेरे पास एक ये सिंपल पेंडुलम है। आप जानते हैं सिंपल पेंडुलम को अच्छे से। प्यारे बच्चों, ये मेरा सबसे फेवरेट एग्जाम्पल होता है सिंपल पेंडुलम, और मैं इसको कोशिश करता हूँ कई टॉपिक को एक्सप्लेन करने में मैं सिंपल पेंडुलम की मदद लेता हूँ। तो ये मान लीजिए एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। हमने इसको ऐसे किया और इसका जो टाइम पीरियड है वो हमने नोट किया। हमने देखा यार 3 सेकंड से कम है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड कितना था? 3 सेकंड। मैं क्या करता हूँ, इसकी लेंथ एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। हमने देखा अभी भी 3 सेकंड से कम है, हम इसको लेंथ बढ़ा देते हैं। हमने इसकी लेंथ और बढ़ा दी और मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा। नाउ आई कैन से भाई अब इसका जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो इक्वल है हमारे इलेप्टिकल लेमिना का जो फिजिकल पेंडुलम था उसके बराबर, ठीक है। इसका भी टाइम पीरियड 3 सेकंड हो गया और हमारा जो इलेप्टिकल लेमिना था उसका भी टाइम पीरियड 3 सेकंड हो गया। अब ये जो लेंथ है ये वाली, इस लेंथ को कहते हैं हम इक्विवेलेंट लेंथ। ये जो सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड सेम है हमारे फिजिकल पेंडुलम के, तो ये तो हो गया हमारा इक्विवेलेंट पेंडुलम, और इसकी जो लेंथ है वो हो गया हमारी इक्विवेलेंट लेंथ। और वो इक्विवेलेंट लेंथ प्यारे बच्चों इसके बराबर होती है k² / l + l, यानी ये जो डिस्टेंस है ना l + k² / l, ये इसके बराबर आएगी। इसको हम कहते हैं, और ये जो बिंदु है पॉइंट है यहाँ पे, दिस पॉइंट कोरस्पॉन्ड टू दिस मास ऑफ बोब ऑफ मास, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये पॉइंट डिनोट करता है कि आपका अगर सिंपल पेंडुलम होता तो इतनी लेंथ का वो पेंडुलम होता। सो इसको k² / l + l को हम इक्विवेलेंट लेंथ भी कह देते हैं। तो मान लीजिए अगर हमारे पास सिंपल पेंडुलम हो और सिंपल पेंडुलम से हम इतना ही टाइम पीरियड ले लें, तो आप ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 2π √l / g, दिस इज फॉर सिंपल पेंडुलम। और ये हमारा हो गया फॉर कंपाउंड पेंडुलम k² / l + l / g. Each and everything will be cancelled out and you will get that this l is equal to this l and this l is called equivalent length. तो आपका ये जो फॉर्मूला है t is equal to 2π k² / l + l / g, इस ऊपर वाले न्यूमरेटर में आप कैपिटल L भी कह सकते हैं और उसको हम कह देंगे द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ आवर पेंडुलम। नाउ अब हमें ये पता करना है कि व्हेन दिस टाइम पीरियड इज मैक्सिमम एंड मिनिमम, उसके लिए क्या करना है, आप इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। यू विल गेट t² is equal to 4π² and k² / l + l / g। ये आप जानते हैं कैलकुलस से कि अगर आपको इसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो यू हैव टू डिफरेंशिएट इट। हम दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू l इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट 2t dt/dl is equal to 4π² / g। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का k² / l² + 1। सो फिर फॉर दिस t to be maximum or minimum, or rather we say to be t as extremum, this dt/dl must be 0, and when we substitute dt/dl equals to 0, you will get minus k² / l² + 1 is equal to 0, and this implies, dear student, k equal ± l, minus l is meaningless, so k equals l. अगेन आई एम सॉरी, दिस के इज अपर केस के, मैं इसको छोटा के लिख रहा हूँ, प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, इस अपर केस के, ठीक है। सो के इक्वल्स एल, ये हमारे पास आया कि इस पर जो टी है वो एक्सट्रीमम होगा, यानी ये मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा अभी हमें नहीं मालूम है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करते हैं d2t/dl²। तो आप इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, कुछ नहीं है बच्चों, सारा कुछ कांस्टेंट है। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म जो है नेगेटिव से क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब कोई भी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में होती है सिंगल पावर में, उसको अगर आप डिफरेंशिएट करते जाते तो एक बार वो माइनस आती है, फिर वो प्लस आती है, फिर वो माइनस आती है, फिर वो प्लस आती है, और ये 0 बन जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ना। तो d2t/dl² इज पॉजिटिव एंड दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम। इट मीन्स फॉर
K इक्वल्स L, T इज मिनिमम। T का वैल्यू मिनिमम आएगा। ये हमारे पास T का एक्सप्रेशन है, इसमें K की जगह आप L रखते हैं तो ये L स्क्वायर बाय L प्लस L बाय G, सो दिस बिकम्स T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ 2L बाई G। ये उसका मिनिमम टाइम पीरियड है, ठीक है, हमारे इसका फिजिकल पेंडुलम का मिनिमम टाइम पीरियड है। मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए अगर आप इसी से देखेंगे तो दोनों कंडीशन में मैक्सिमम हो सकता है जब L की वैल्यू इनफाइनाइट हो या L की वैल्यू 0 हो। सो T विल बी मैक्सिमम व्हेन L इज इक्वल टू 0 और L इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगेन L इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज नॉट पॉसिबल, L इज इक्वल टू 0 इज पॉसिबल। 0 तो क्या है भाई, इसको मान लीजिए L की वैल्यू 0 करने का मतलब है कि आपने जो है यहाँ इसमें छेद करके ऐसे और इसको टांग देना है, ये ऑसिलेट ही नहीं करेगा, ठीक है। इट्स व्हेन यू सब्स्टिट्यूट L इज इक्वल टू इन्फिनिटी और L इज इक्वल टू 0 देन T विल बी इनफाइनाइट। ये इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड है। तो अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये कोई प्रैक्टिकली इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। हाँ, T इज इक्वल टू मिनिमम जो है हमारा, इसका हमारा एक सिग्निफिकेंस होता है, प्रैक्टिकल में भी होता है, आपके यूजी के प्रैक्टिकल के सिलेबस में भी है, जिसमें आप डिटरमाइन करते हैं G बाय यूजिंग बार पेंडुलम, जो हमारे सिलेबस में भी है और शायद अगला टॉपिक भी हम उसको करेंगे। तो यहाँ से जो हमारा O आया है, इसके बारे में एक और खास बात है बच्चों, क्या है कि अगर आप ये इलेप्टिकल लैमिना है, इसको अगर आप उल्टा सस्पेंड करें, यानी कि अगर हम यहाँ छेद कर दें और फिर इसको टांग देंगे तो इसका टाइम पीरियड वही रहेगा जब हम इसको यहाँ पे सबटेंड करते। तो एक प्रकार से इसमें 4 पॉइंट बन गए बच्चों, 4 पॉइंट जिस पर हमारा टाइम पीरियड सेम होता है। अब वो मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ कोशिश करता हूँ बनाने की। ये हमारा एलिप्स हो गया, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, तो ये इसका एक फोकस है बच्चों F1, ठीक है, F1। इस F1 के कोरस्पोंडिंग आपका ये G है, इस F1 के कोरस्पोंडिंग हमारा यहाँ पे एक ऑसिलेशन, पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन रहेगा, से दिस इज O1। इन ए सेम वे हमारे पास एक फोकस इधर होता है और इस फोकस का एक, इसको मैं F2 कह देता हूँ, और इस फोकस का एक हमारे पास पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन होगा O2। अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो चाहे आप इसको F1 से सस्पेंड करो, चाहे इसको F2 से सस्पेंड करो, यू विल गेट द सेम टाइम पीरियड। एंड इफ यू हैव द सेम टाइम पीरियड फॉर F1 एंड F2 इन अ सेम वे वी विल गेट द सेम टाइम पीरियड फॉर O1 एंड O2, क्योंकि O1 इज द पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन फॉर F1 and O2 is the point of oscillation for F2. So these 4 points 1, 2, 3 and 4, 2 are on this side and 2 are on the opposite side of center of gravity. We got the same time period for this elliptical lamina, physical pendulum in the form of elliptical lamina. एक और इसमें बस बात बच गई, ये ध्यान रहे कि जो O1 पॉइंट है ये जरूरी नहीं है कि ये इसी बॉडी के अंदर हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये O1 जो है बाहर हो, ठीक है। तो उस केस में आपके पास फिर 4 की बजाय 2 पॉइंट रहेंगे जिस पर टाइम पीरियड सेम रहेगा, एंड दोज पॉइंट्स आर फोकस, क्योंकि फोकस इलिप्स से बाहर नहीं हो सकते, लेकिन O1 O2 इस इलिप्स से बाहर हो सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो प्यारे बच्चों।